अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, शो का आगाज़ कर रहे हैं गाँव की उसी पंचायत से। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मैं आपको बता, इससे पहले कि आप अपना आज का मसला जो है वो बयान करें, मैं छोटी सी आपसे बात करना चाहता हूँ। आइंदा के बाद प्लीज़ जब आप अपने चॉइस साहब को लेके आया करें ना, तो इनको चारपाई पे खुद बिठाया करें। ये आके बैठे हैं तो बेचारे ये जो पैंती की रस्सी है इसमें फंस गए। कभी इनको गिरा लग जाती थी, कभी रस्सी को गिरा लग जाती थी। मुझे आधा घंटा लगा है इनको पैंती से निकालते हुए। प्लीज ये जिम्मेदारी अपने सर लें आप। मैं खुद बड़ा टेंस हुआ हूं, देख के बड़ी परेशानी हुई है। मैं समझिया कोई किसी ने पुआंदियां ते मफलर सुटे है। वो तो जो हिले ने चोरी साहब तो मैंने पता लगा है चोरी होरी फसे पे ने पुआंदे। मैं तो जनाब सियाणिया को सुनिया भी बंदा अपनी कीतियां च फसदा ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚੌਧਰੀ ਫਸ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ? ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਜੀ। नहीं, गल मैंने क्या बतानी है, गल तो आपने करनी है। बताएं आज क्या प्रॉब्लम है आपको? जुनैद जी सीधी गल है की सियाने आंदे ने के आईने बेचता हूँ अंधों के शहर में। वाह जी वाह। मेरा मतलब है कि सारे पिंड दे लोग ही जिथे अन्ने वसदे होण ਉੱਥੇ ਸੁਜਾਖਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਕੱਪੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਰਾਣੇ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬਦਨਸੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਤਾਇਆ ਅਸੀਂ ਗੁੰਗੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਲਓ ਜੀ ਜੁਨੈਦ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤੇ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੇ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੋਰੀ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸਰੂਫ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਰਾ ਜੁਨੈਦ ਜੀ ਕੀ ਜ਼ਹਿਨ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰ ਚੁੰਮਿਆ ਉਦਣ। ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ अच्छा, ਅੱਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲਾਵੇ ਜੇ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। आपने इनका सर चूमा? ਹਾਂਜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤੇਲ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੁਰਮ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗੜ ਜਾਣਾ, ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। बड़ी गहरी सोच है, ਤੇ बड़ी ਇੱਧਰ गहरी ਵੇਖੋ सोच। ਜਰਾ ਵੇਖੋ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕੀ ਜ਼ੇਨ ਹੈ। 6x8 ਦਾ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਰਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਨੇ ਜੁਨੈਦ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਿਲੀਅਰਡ ਦਾ। हाँ हाँ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਗਲਤ ਕੰਮ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਇਆ ਜੀ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਜੂਆ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਮੂੰਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੋਲ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਾ। ਤੇ ਰਾਣਾ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ इसीलिए मांग के खाते हैं फिर आप। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੁਨੈਦ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਗੀ ਦਾ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਕੋਲ हाँ ਕਸ਼ ਜਿੰਨਾ ਕਦਰ ਨਾ ਮੇਰਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਾਵੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ। ਤੂੰ ਨਾ ਮੁਰਾਦਾ ਹੋ ਰੇ ਕਿੱਥੇ ਉੱਥੇ 200 ਹਾਰ ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ। ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੂਆ ਲਾ। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਨਾ 2 ਦਰਜਨ ਆਂਡੇ ਰੱਖੋ ਨਾ ਮੁਰਗੀ ਥੱਲੇ ਤੇ 2-3 ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਗੰਦੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਖੇਡਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਿਆ ਤੇ ਖੇਡਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਖੇਡਣ ਦੇ ਤੇ ਆਂਦਾ ਮੇਰਾ 200 ਲੱਗਾ। ਉਹ ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ ਤੂੰ? ਨਹੀਂ ਅੱਬਾ ਮੈਂ ਤੇ ਜੂਆ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋ। ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜੀ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ ਹੋਰ ਖਾਨ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਸਕੈਸ਼ ਖੇਡਦਾ। ਐਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਮੁੰਡਾ ਤੇਰਾ ਤੇ ਉਤੋਂ ਨਾਮ ਮੁਰਾਦ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਲੀਅਰਡ ਕਲੱਬ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। ਓ ਸ਼ਦਾਦਿਆ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਚ ਖੇ ਪਵਾਤੀ ओहो, ये ना करे, ये ना करे। ਐਡੀ ਨੇਕ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਕੇ। ਆਪਾਂ ਜੂਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੇਡਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਂਝ ਹੀ ਗਿਆ ਸਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ? ਸਿਰ ਵੇਖੋ ਇਹਦਾ ਖੇ ਪੈ ਸਕਦੀ, ਖਲੋ ਸਕਦੀ ਖੇ। ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ਕੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਲਕਾਂ ਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
2 ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਥਾਣਿਓਂ ਛਡਾ ਕੇ ਲਿਆ ਜੇ ਚੌਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤਰਲੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪੱਗ ਰੱਖ ਕੇ ਐਸਐਚਓ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਖਰਾਬ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਬਿਲੀਅਰਡ ਰੱਖਿਆ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਊ ਜਨੇਦ ਜਿਸ ਸਨੋਕਰ ਕਲੱਬ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਨਹੂਸਤ ਹੈ, ਅਜਾਬ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮੀ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦੇ, ਰਾਤ ਦੇ 12 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਕਲੱਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਛੱਡੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਦਾਂ? ਖਾਦ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਬਣਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਲੱਗਦੇ ਲਾਣੇ ਨੂੰ, ਖਾਦ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਡਈ। हाँ जुनैद साहब बेड़ा गर्क हो गया एक वाई बीजी का भी। अब वाई बीजी तो हमारे मुल्क की शान होती थी। मेन कारोबार ही वाई बीजी था पाकिस्तान का और खास तौर पे पंजाब का। यूरिया की बोरी 600 क्रॉस कर गई। अब देखो ना जरा, मेरा मतलब है कि यूरिया ना हो गया, सुपर पेट्रोल हो गया। ਉਹ ਤਾਇਆ ਜਿਹਨਾਂ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਖੇਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲੀਅਰਡ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਉਹ ਨੇ। ਬੜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। जुनैद साहब इधर देखो जनाब, ਖਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਤੀ, ਫਿਰ 7 ਮਰਲੇ ਹੀ ਵਾਈ ਮੇਰੀ। ਬੀਜੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੰਡੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮਾਂ ਸੋਚਦੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਸੋਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਪੜਨ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਗੇ, अब्बा जान, मैंने कहा जी बेटे आप फरमाएं, हुक्म करें। कहने लगे अब्बा जान आपके गांव के साथ मुझे मोहब्बत हो गई है, क्योंकि मैं आपके गांव का अब दामाद बन चुका हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि गांव के नौजवानों के किरदार कुशी से बचाऊं मैं। तो मैं क्या पुत्र जी ये आप क्या अल्फाज आज माशाल्लाह सूफी तबस्सुम साहब वाले बोल रहे हैं। कहने लगे वो कौन ने सूफी साहब? फिर मैं दसिया, मैं पुत्र बहुत बड़े उस्ताद होए ने। हाँ मैं तो अहले इल्म है चोई साहब। ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਸ। ओ खलो जा तू। ਆ ਜਿਹਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਨਾ, ਨਿਆਮਤੁੱਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਪੀਸ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਤੀਚੂਰ ਦੇ ਲੱਡੂ ਲਾਲ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਦੰਦੀ ਮਾਰੀ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ 2 ਦਾੜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। जुनैद साहब कहन लगे कि मुआशरा खराब हो जाना, बिगड़ जाना सारे पिंड ने, ते फटाफट को ऐसी थां बना दिया इन्हां नूं मैं कि मुंडे वेले बह के कोई गलत सोचा ना सोचण। नहीं तो उसमें से पैसा नहीं कमा रहे आपके दमादे आला ਇਹ साहब ਤਾਂ हैं। ਬਿਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾੜਾ ਕਾਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੇਂਦੇ ਨਾ ਰਾਤੀ ਥੈਲਾ ਭਰ ਕੇ ਦਸਾਂ हाँ, असल बात आप भी करें ना, आप ऐसे कह रहे हो कि जैसे वहां पर कोई वेलफेयर सेंटर खोल ਮੈਂ दिया दमाद ने। ਪੈਸੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਖਸ਼ ਜਿੰਨਾ ਕਦਰ ਨਾ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੋ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਕਣਕ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਗੇਮ ਲਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਆਲੂ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਮੰਗਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਐਵੇਂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬਿਲੀਅਰਡ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਤੇ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਰੀ ਏ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ 10 ਦੇ ਲੋਟ ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਥੈਲਾ ਭਰ ਕੇ ਘਰ ਖੜਿਆ ਨੇ ਤੇ ਪੌਣੇ 400 ਰੁਪਈਆ ਬਣਿਆ ਟੋਟਲ। ਭਾਈਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੱਡੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਬਟ ਤੇਰੇ- ਆਮੀਨ ਪੁੱਤਰ ਆਮੀਨ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਾਏ ਤੇ ਚੰਗੀ ਏ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਭਾਈਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਚ, ਬਿਲੀਅਰਡ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਬਿਲੀਅਰਡ ਤੇ ਆਂਦਾ? ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਤਲੀਮ। ਐਡਾ ਦੇ ਬਿਲੀਅਰਡ ਉੱਚਾ ਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬੱਚਾ? ਚੰਗੇ ਬਲੇ ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਣੇ ਮੁੰਡੇ ਜੁਨੈਦ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਆ ਨਵੀਂ ਮਾਸਟਰ ਫਰਿਆਦ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਉਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਚਾਚਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਿੰਡੋਂ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਲੱਬ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਹੁਣ 11 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਬੱਤੀ ਬਲਣ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਐਡਾ ਬਲਬ ਲਵਾਇਆ ਹੈ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਛੋਟਾ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਆਪ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚਮਕ ਸਹੀ ਪਈ ਮੇਜ਼ ਤੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਬਲਬ ਹੁਣ ਲਵਾਇਆ ਨੇ ਤੇ ਜਗਮਗ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬੱਚੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਰੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਭਾਈਆ ਚੌਂਕ ਜਗਮਗ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਹਨੇਰਾ, ਕਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪਾਊਡਰ ਵੇਚਣ ਡਏ ਨੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਏ ਵੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਲਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ। तो यार धमकियों पे क्यों उतर आए हैं? ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਤੇ ਜੀ ਸਹੀ ਜੁਨੈਦ ਜੀ ਲੈ ਪੁੱਤਰਾ ਚ ਫੱਟਾ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਤੇ ਸਰਾਣੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਕਾਲੇ ਗੋਗਲ ਲਾ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ।
ਆਈ ਸਹੀ ਉਧਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗਾਟੇ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂਗਾ और लड़ाई वाली बात ना करें यार, दरमियानी रास्ता निकाल लें। देखिए अगर उनके इस बिजनेस से कोई कबातें जन्म ले रही हैं, कोई मसाइल पैदा हो रहे हैं, तो आप ठीक तरह से बात करें, एड्रेस करें। ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ, ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਦਾ, ਖਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਈ ਹੈ ਬਗੈਰ ਖਾਦ ਪਾਣੀ। ਜੁਨੈਦ ਜੀ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਚਲਾਵੇ ਟੂਬਲ? ਟੂਬਲ ਐਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਬਈ। है वैसे आपके पास अपना ट्यूबवेल है? ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਟੂਬਲ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਰ 36 ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਵਾਲ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਕਰਾ ਲਈਏ। अच्छा, और भी हैं बिजनेस? ਜੁਨੈਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਗੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਰੇ ਬਿਲੀਅਰਡ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੋਰ 36 ਕੰਮ ਨੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਬਿਲੀਅਰਡ ਵਾਲੀ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੂਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨੇ, ਹਰ ਮੂਲੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੱਖਰਾ ਫੁੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਣ ਡਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਨਿਮਕ ਮਾਲਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਾਹਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੁਪਈਆ 2 ਵੱਧ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਸੀਏ, ਪਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਦੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਟਾ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਗਾਨੀਆਂ ਤੇ ਘੁੰਗਰੂ ਤੇ ਪਜੇਬਾਂ। ਅਬ ਈਦ ਦੇ ਦਿਨ ਜੋ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਈਦ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾ ਛੱਤ ਨੂੰ ਵੱਜਦਾ ਜੀ। ਗਾਨੀਆਂ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਕਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕੀ ਲੈ ਦੇ ਜਾਂਦੇ। इतने कारोबार करते हैं तो इनको लाहौर चैम्बर का इलेक्शन ही लड़वा दें। ਉਹ ਜੁਨੈਦ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਰਹੀਏ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿੰਡ ਕੌਣ ਸਾਂਭੇਗਾ। ਬਦਲਾ ਦੇ ਸਾਰਾ ਇੰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਡਾਂਗ ਤੇ ਗੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਣ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਕੌਣ ਡੱਕ ਸਕਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸਲਾ ਨਾ ਬਿਠਾਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਸਕਣਾ, ਲੱਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੈਦਲ ਟੁਰੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਏ? ਇਹਦੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਟੁਰ ਜੇ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਟੁਰ ਜੇ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ, ਚੁੱਕ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਚਾੜੀ ਜਾਏ ਛੱਤ ਤੇ ਬਸਾਂ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੌਣ ਮੋੜਨ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਫੁਰਤੀ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਚੜਾ ਦੇਣਾ, ਸਵਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਦੂਸਰੀ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿ ਜੇ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਕਦੀ ਮੂੰਹ ਹੋਣੀ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਸ਼ਕਲੋਂ ਹੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਬਾਹਰ। ਤੂੰ ਹੀ ਹੱਸਣ ਡੇ ਬਾਊ ਜੀ, ਚਾਚਾ ਮੇਰਾ ਸਹੀ ਆਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਟਿਕਟ ਲਈ ਹੀ ਮਰੀ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੈਰ ਕਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਅਸਮਾਨ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਚੜਾਉਣਾ ਛੱਤ ਤੇ। नाज़रीन, यहाँ मिल लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। कौमी बीमारी कौन सी है? खांसी। जब ये बात मुख्तलिफ सोशोलॉजिस्ट से पूछी गई तो उनका एक ही जवाब था कि हमारी जो कौमी बीमारी है वो सुस्ती है। भाईजान, हमारा कौमी खेल कौन सा है? हाकी। कौमी फूल कौन सा है? चंबेली। कौमी बीमारी कौन सी है? खांसी। जब ये बात मुख्तलिफ सोशोलॉजिस्ट से पूछी गई तो उनका एक ही जवाब था कि हमारी जो कौमी बीमारी है वो सुस्ती है। बहुत अच्छे। अब आप इसके जवाब में कहेंगे नहीं, हम तो बड़ी मेहनत कश कौम है। नहीं, ये बिल्कुल इतनी नहीं। बड़ी गलत फहमी है ना, जिसका हम शिकार है, पूरी कौम ही इसका शिकार है कि हम बड़ी मेहनत कश कौम है। कोई मेहनत कश कौम नहीं है, हम परले दर्जे के सुस्त हम लोग हैं। अब ये बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप अपनी ज़िंदगियों का मवाजना करें ना यूरोपियंस के साथ, अमेरिकन के साथ, बैरून मुल्क जिन लोगों ने तरक्की की हुई है उनके साथ करें, तो आप इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि मुकाबला बनता ही नहीं है। हम बहुत कहते हैं जी बड़ी मेहनत करते हैं, फलां जगह बड़ी मेहनत करते हैं, सुबह जाते हैं रात को आते हैं। फिर सुबह जाते हैं रात को आते हैं, उसमें से आप जो हार्डकोर काम है उसके घंटे निकालने कितने हैं? तो वो आपको, अगर आप घर से बाहर हसूल रिज़्क़ के लिए, रिज़्क़ की तलाश के लिए निकले हुए हैं, तो आप देखते हैं कि मैं तो 12-14 घंटे घर से बाहर रहा हूँ काम के लिए, लेकिन हार्डकोर काम कितनी देर किया तो 3 या 4 घंटे भी नहीं बनते होंगे। हाँ जी। आप अपना आम तौर पे देख लें कि आपने घर में किसी कारीगर को लगाया हुआ है, मजदूर को लगाया हुआ है, मिस्त्री को लगाया हुआ है, तो ज़रा उसके जो वर्किंग आवर्स हैं या वर्किंग मिनट्स हैं वो नोट करें, और जो उसका टाइम स्पेंड है वो नोट करें कि वो आपके पास रहा कितनी देर है। सुबह 9 से 5 बजे तक रहा है, लेकिन उसमें से उसने काम कितना किया है। तो आप ये
जान के शर्मिंदा होंगे कि हर बंदे का ये हाल है, हमारा अपना भी यही हाल है। भाई बात ये है कि कोई मेरा ख्याल है कोई साइकेट्रिस्ट या कोई ऐसा होगा दानिश्वर जो कहता है कि आपने किसी मुल्क की हार्ड वर्किंग या उसकी तरक्की देखनी है जी जी या उसकी मेहनत देखनी है तो आप किसी फुटपाथ पे या प्लेटफॉर्म पे लोगों के अवाम के पाँव की तरफ देखें, कदम देखें, वो जितनी तेजी से उठ रहे हैं उतनी वो कौम जो है वो तेजी से तरक्की कर रही है। चीनियों को देख ले, हाँ जी। चीनियों को किसी ਤੇ प्लेटफॉर्म ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ 3 ਉੱਥੇ ਬੈਂਚ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੜ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਾਂ ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸਿਗਰਟ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਾਈਨ ਵਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਲੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ है फ्रैंकलिन का नाम आपने सुना होगा, अमेरिका का अब बहुत मेरा बड़ा क्लास फेल होता यार बात करता हूँ उसका काम अक्लो दानिश और तुम उसी से तो पता चलता है कि वो मेरा क्लास फेल होता है। वो ये कहता है कि पुरसकून जिंदगी में और सुस्त जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क है। कहता है सोने के लिए तो कब्र में सारी उम्र पड़ी है बात में। हाय। बड़ा तारीखी जुमला है उसका। और आप ये देखें कि हम ये समझते हैं कि पुरसकून जिंदगी है, ये जो हम काम नहीं करते तो हम फरागत की ज़िंदगी बड़ी मज़े की ज़िंदगी है, लेकिन वही फरागत जो है वो बाद में आपके लिए कितनी तकलीफ का बायस बनती यार है। अगर पौनी कौम तो हमारी जो है उसकी कंटिन्यूटी ये है, वो खानियां तो 2 रोटियां ही ने छੱਡ पर ਬਹੁ। 2 ਰੋਟੀਆਂ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਖਾਣੀਆਂ ਤੇ 50 ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਠ ਕੰਮ ਕਰ। हम सुस्ती के लिए ना, सुस्ती का दिफा करने के लिए बाज बड़े लोगों के जो तंजिया जुमले हैं ना वो उनका सहारा लेते हैं। मसलन बिल गेट्स की कोटेशन जिंदगी के बारे में काम के हवाले से बहुत मशहूर है। अच्छा, उसने एक तंजिया कहा था कि मैं हर मुश्किल काम के लिए सुस्त तरीन बंदे की तलाश करता हूं, क्योंकि सुस्त बंदा जो होता है वो हर काम का शॉर्टकट तलाश कर लेता है। अच्छा, ये उसने तंजिया कहा था। वाह वाह। और उसके बाद हमने कहा कि हर औखा काम जो है वो किसी चर्सी को दे दो। ऐसा नहीं है यार ईमान से मैं सोचता हूँ कि ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनकी सोच मेरे से कितनी मिलती है। मैं किसी वक्त अल्लाह माफ करे डर जाता हूँ। अच्छा, फिर हम अपनी सुस्ती को ना एक और बात से भी कंफ्यूज करते हैं कि दुनिया के जितने बड़े बड़े लोग हैं ना, बड़े बड़े दिमाग जो है ना, वो बड़ी सुस्त रवि से ही काम करते थे, वो बड़ा आराम आराम से काम करते थे, वो जल्दबाजी का शिकार नहीं होते थे। ये बिल्कुल ये जो तख्लीकी लोग होते हैं ना, ये उनकी ज़िंदगियों का मामला है। जो बड़े बड़े मुसाफिर, जैसे कहते हैं मोनालिसा की तस्वीर है, वो इतने सालों में मुकम्मल हुई, लेकिन इतने सालों में मोनालिसा की तस्वीर को नहीं चिपका रहा था, बाकी काम भी कर रहा था। असल में देखें, मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब ने जो अपनी शोरा आफाक ज़रगुज़श्त है जब लिखी थी तो गालिबन 1971 में शुरू की थी। वो कहते हैं कि मैं एक मजमून लिख के ना ज़रगुज़श्त का जब शुरू की ना मैंने, तो कहते हैं कि मैं अपना एक मजमून लिख के मजमून की पैल डाल देता था, जैसे आमों की पैल नहीं डाल देते। कहते थे मैं फिर उसको कुछ अरसे तक नहीं पढ़ता था, फिर उसको जब मैं कुछ अरसे बाद दोबारा खुद पढ़ता था तो मुझे लगता था कि ये छपने के काबिल है या नहीं है, फिर मैं उसका इंतखाब करता था। तो ये सुस्ती नहीं है, ये काम करने का स्टाइल है। जो बड़े बड़े लोगों, जो बड़े बड़े जो ग्रेट माइंड्स है ना, ब्रेनी लोग जो हैं, ये उनका काम है। जहाँ पर हम काम की बात करते हैं, जो डेली रूटीन का काम है, उसमें तो हमें ये देखना चाहिए कि यार मैं 10 घंटे इस काम पे सर्व कर रहा हूँ, तो मैं उसमें से हार्डकोर काम कितनी देर करूँगा, मैं वही काम 4 घंटे में भी मुकम्मल कर सकता हूँ, लेकिन नहीं करते हम। एक बड़े बंदे का कॉल है कि काहली हमेशा आपको दिलकशी देती है, मज़ा आता है ना काहली में, सुस्ती में, लेकिन काम जो है ना, चुस्ती कह लें, वो आपको सुकून देता है। हम ये समझ रहे होते हैं कि सुस्ती और काहली हमें सुकून देती है, काम आपको सुकून दे रहा होता है, वो तो नशा है। सुस्ती तो नशा है, लग जाए तो फिर बैठे हुए हैं। बाबू जी, हमारे लोग तो शुरू से ही दुकान पे लिख देते हैं यहाँ काम तसल्ली बख्श किया जाता है। उन्होंने घड़ी ठीक करने वास्ते दो, कहंदा हफ्ते बाद आके ले जाना, हफ्ते बाद जाओ तो कहंदा 3 दिनों बाद आना, मैं काम तसल्ली बख्श कर रहे हैं। हालांकि घड़ी ਜਿਹੜੀ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਤੇ ਲਾਇਆ।
یہ جو ہماری سستی ہے نا، اس کے بارے میں انور شعور صاحب کا بہت ہی خوبصورت شعر ہے. تساہل ایک مشکل لفظ ہے، اس لفظ کے معنی. تساہل ایک مشکل لفظ ہے، اس لفظ کے معنی کتابوں میں کہاں ڈھونڈوں، کسی سے پوچھ لوں گا میں. واہ 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 واہ، بہت اچھے. کتاب کھولنا بھی مشکل ہوتا ہے کئی بار. اچھا، میں تو پھر یہ مثال دینے سے بھی بعض دفعہ ڈر جاتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارا جو کاشتکار ہے یا جو ہماری دیہی زندگی ہے وہ بہت مشکل ہے. اچھا، خواتین کی حد تک بلکہ میں اس بات پہ قائل ہوں کہ جو دیہاتی خواتین ہیں ان کی زندگی بہت مشکل ہے. اچھا، جو ہمارا کاشتکار ہے، کسان ہے، اس کی زندگی بھی کوئی آسان نہیں ہے. لیکن پھر میں وہی کہوں گا کہ اس کے جو ورکنگ آورز ہیں دنیا میں، جو اگر ہفتہ وار کام کرنے کے گھنٹوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ شاید دنیا کے 4-5 ملکوں میں ان کا شمار ہوتا ہو، ہمارے دیہی زندگی کے جو ورکنگ آورز. لیکن اب آپ پھر وہی آپ اندازہ لگائیں کہ وہ صبح گھر سے جاتا ہے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے الگ صبح، ٹھیک ہے، اور شام تک کھیتوں میں رہتا ہے. لیکن وہ کام کتنا کرتا ہے وہاں پہ؟ وہ کام کرتا ہوگا یعنی پانی لگانا ہے اس نے، اس کے بعد اس نے بیٹھ کے حقہ پینا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد دوپہر کی روٹی کا انتظار کرنا ہے. یہ سارے نہیں میں کہہ رہا، بہت بہت سخت کام بھی کرنے پڑتے ہیں بیچاروں کو. لیکن ان کی جو اکثریت ہے نا، وہ اپنا کھیتوں میں بیٹھ کے کام کرنے کی بجائے وقت ضائع بہت زیادہ کرتے ہیں. جی بہت زیادہ کرتے ہیں. ہاں جو جی، ہمیں محفل لگانے کی عادت ہے نا، یہ ہمارا اصل میں سب سے زیادہ وقت کھاتی ہے. ہاں جی، پونا کو گھنٹہ جڑا پچھلے ہفتے گوگی دا ویاہ آیا سی اودیاں بھی گلاں کرنی نہیں پھر ہویا تیرے نال فلانے منڈے نال ہی ہو گیا، پھر ویکھ لے. اس کے بعد اب جو ایک نئی مصیبت اور عذاب ہے وہ یہ موبائلز آ گئے ہیں. جب سے آپ اپنے گھر میں آپ نے کوئی کام کے مزدور لگائے ہوئے ہیں یا ویسے بھی آپ ورک پلیسز آفیسز میں دیکھ لیں، اپنے تعلیمی اداروں میں دیکھ لیں کہ جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر جو ہیں وہ تعلیم حاصل کرنے کی بجائے، کام کی بجائے، محنت کی بجائے وہ ٹک ٹاک اور فیس بک یوز کر رہے ہوتے ہیں کام کے دوران. اب پوری دنیا میں یہ جو سوشل میڈیا اپلیکیشنز ہیں یہ اتنی استعمال ہو رہی ہوں گی، لیکن کام کے دوران استعمال پہ بہت پابندی ہے. بہت، بلکہ اکثر یورپی ممالک میں تو اس بات پر پابندی ہے کہ فیس بک آپ استعمال ہی نہیں کر سکتے. یعنی یار آپ اپنی فیس بک کو ٹویٹروں پہ اور ادھر ادھر پوسٹ پڑھ کے ہی اندازہ لگا لو کہ ہم کتنے کو عقل مند اور کس فضول کام میں وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ چلو جاپان کا سنا جی، وہاں ٹیکنالوجی اور سائنس کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، نالج کے حوالے سے پوسٹ لگائی جاتی ہیں اکثر سوشل میڈیا کی ہر جگہ پہ. تو یہاں پہ تو آپ اپنے کسی امریکہ، کینیڈا یا کسی انگلینڈ میں اپنے کسی جاننے والے کو میسج کرتے ہیں کہ فلاں فلاں گپ مارنے کے لیے، اگلا جواب 1 سیکنڈ میں آ جاتا ہے کہ آئی ایم ایٹ ورک. میں نہیں بات ابھی کر سکتا، ہاں بعد میں کروں گا جب میں فارغ ہو جاؤں گا، ابھی نہیں میں بات کر سکتا. ਇੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ੁਲਫੀ ਸਲਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਦਿਨੇ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਬਵਾਂਗੇ ਯਾਰ ਬਹਿ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿਣਾ. ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਠ ਵੀ ਗਲਾਏ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਕੱਲ ਬਵਾਂਗੇ. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. شہد کی مکھی جو ہے وہ ایک دفعہ کاٹتی ہے آپ کو، ٹھیک ہے، لیکن جو بھیڑ ہے وہ ریپیٹڈ اوفینڈر، وہ بار بار آپ کو کاٹتی ہے. اچھا جی، ٹھیک ہے، ہاں. یعنی اس کی پستول میں میگزین بڑا ہوتا ہے. اچھا بچوں، آج ہم زولوجی کی اس کلاس میں ایک ایسی مخلوق کا ذکر کریں گے جس سے ہمیں بہت ڈر لگتا ہے اور اچانک کہیں سے وہ نکل آئے تو ہماری جان جاتی. شیر نہیں، سانپ نہیں، بھیڑ، جس کو ہم پنجابی میں پونڈ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈیمو بھی کہتے ہیں، ڈیمو بھی کہتے ہیں، ڈیمو بھی بھیڑ. پنجابی میں کہتے ہیں، لیکن اردو میں اس کو بھیڑ کہتے ہیں اور انگریزی میں اس کو واسپ کہتے ہیں، WASP، واسپ. ٹھیک ہے، اس کی 30,000 سے زیادہ اقسام ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ پیلی بھیڑیں دیکھیں
उसमें भी बहुत ज़्यादा यानी फ़र्क होता है उन पीली भेड़ों में भी। फिर आपने ब्लैक काले कलर में जो भेड़ होती है जो बड़े साइज की होती है, तो इस तरह ये 30 सर ये जो हजार से पूंड ज़्यादा होता है वो तो जब डंग मारता है तो सोज पड़ जाती है, तो वास्प भी डंग मारे तो सोज पड़ती है। वास्प भेड़ ही है ना, नहीं, वास्प वो तो अंग्रेजी में, इंग्लिश हो गया ना वास्प। तो वो अंग्रेजी में डंग मारता है, डंग उसी तरह मारता है। अच्छा, नहीं, मैंने समझा शायद देसी जो है उसकी वजह से सोज पड़ती है। नहीं नहीं सर नहीं, मैं आज के बाद वास्प ही कहा करूंगा, ये भिड़ कहा कहेंगे। वास्प जो है वो बड़े खूबसूरत रंगों में भी होता है। ऑस्ट्रेलिया में कैकूज वास्प है जो ब्लू और ग्रीन कलर का होता है, इंतहा दर्जे का खूबसूरत। जैसे वहाँ के पैरट्स खूबसूरत हैं, तो वहाँ की जो भेड़ें या पूंड हैं वो भी बहुत सर खूबसूरत जो ऑस्ट्रेलियन वास्प बताया आपने बड़ा खूबसूरत होता है, वो लड़े तो फिर भी स्वेलिंग होती है। है। तकरीबन ये जो 30,000 अक़साम है, इनमें से जो ज्यादातर हैं, हैवी मेजॉरिटी जो है वो काटती भी है, और जब काटती है तो आपको छठी का दूध याद आ जाएगा। तानी बिगड़ी। और बल्कि ये जो एक जदीद रिसर्च हुई है अमेरिका में, उसके मुताबिक अगर बहुत ज़्यादा भेड़ें आपको एक ही वक्त में काट लें तो आपको फालिज का हमला भी हो सकता है। डेथ होगी जी सर। सीरियस, हाँ हो जाती है वो तो बहुत बड़ी तादाद में। शहद की मक्खियाँ भी अगर हमला कर दें तो भी मौत वाक़ हो सकती है। शहद की मक्खियों में और वास्प में या भेड़ों में बहुत सारी आपको मुमासलत नजर आएगी उनके रहने सहने का तरीका, लेकिन उसके साथ ही बहुत ज्यादा फर्क भी नजर आएगा। सबसे बड़ा फर्क तो है ही ये कि शहद की मक्खी जो है वो शहद लेके फिर रही है, ये खाली डंग लेके फिर रही है। ये खाली डंग लेके फिर रहा है। अच्छा, ये ज़हन में रखें कि ये भेड़ों का या वास्प इसका भी फायदा है। देखें, अल्लाह ताला ने कोई चीज़ भी बेमकसद नहीं पैदा की होती। ये बहुत सारे ऐसे कीड़े मकोड़ों को खा जाता है, ये जो भेड़ होती है, जो फसलों के लिए या इंसानी ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह होते हैं, ये उनका खात्मा करता है। और बुनियादी तौर पे ये जैसे शहद की मक्खी है, वो रस चूस के गुजारा करती है, बल्कि उससे शहद भी बनाती है। ये उसकी निस्बत जो है रस ये भी चूसता है, भेड़ जो होती है ये भी रस चूसता है। अच्छा। हाँ, लेकिन ये गोश्त खोर है बुनियादी तौर पे, ये कीड़े मकोड़े खाता है, लार्वा स्टेज पे कीड़े मकोड़े खाता है। और सबसे दिलचस्प बात ये है इसकी कि जो आपको काटता है ना भेड़, वो काटता नहीं है, वो हमेशा काटती है। सिर्फ मादा काटती। यानी मैं हैरान हूं कि इंसान हो, शहद की मक्खी हो, मच्छर हो या वो भेड़ हो, मादा है तो वो नुकसानदेह है, नर है तो वो बेजरर है। सर अपने कानों को हाथ लगाएं और उसके बाद जरा सोचें कि जो मादा हैं उनका बहुत फायदा भी है। निरा डंग खा के ना आप गुस्सा चढ़ा लें, ठीक है, पर जाइए आपको बिस्त बुस्त कर दे। पर जाइए यार, तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारा टीचर हूँ। नहीं सर, हम अब बुजुर्ग स्टूडेंट हैं, ये तलीम बालगा है सर। उस्तानी को चले अस्तानी कह लें, अस्तानी हमारी जो हैं वो माशाल्लाह घर को संभालती है। तो बिड़नी जो है वो तो डंग मार के दे अपने घर थे, वो अपने घर। सर ये गोगे को भीड़ लगने आई तो फिर उसने दूसरियों को कहा आओ भैना चलिए, तो पहले ही बड़ा सूझे अपने। अच्छा, फिर भेड़ में और शहद की मक्खी में एक और फर्क भी है कि शहद की मक्खी जो है वो एक दफा काटती है आपको, ठीक है, बल्कि अक्सर तो कहा जाता है कि वो काटने के बाद मर जाती है, ठीक है। लेकिन जो भेड़ है वो रिपीटेड ऑफेंडर, वो बार बार आपको काटती। अच्छा जी, ठीक है, हाँ, वो एक दफा फिर काटेगी, फिर यानी काटेगी, जो उसकी मर्जी कर। पिस्तौल में मैगजीन बड़ा होता है। क्योंकि वो जो है शहद की मक्खी अपने डंग से और काम लेती है। जो वास्प जो है या भेड़ है, डेमू, पूंड, ठीक है, ये जो है ये अपने डंग से अपना शिकार करके खाते हैं, इसलिए इनका डंग जो बड़ा तगड़ा होता है शहद की मक्खी की निस्बत। अच्छा सर जी, ये शहद की मक्खियों की तरह ये भेड़ें भी कॉलोनियों में रहती हैं? अच्छा, ये जो है ना एक तो छत्ता बना के रहते हैं, भेड़ें भी छत्ता बना के रहती हैं, लेकिन भेड़ें छत्ते के बगैर भी रह लेती हैं। और दूसरा, इनके छत्ते में भी बुनियादी तौर पर फर्क होता है। जो शहद की मक्खियों का छत्ता है वो वैक्स की तरह का होता है, मोमी होता है, ठीक है। भेड़ें जो हैं ये दरख्तों की या लकड़ी की छाल चबा के उसका पल्प बनाते हैं और पेपर लाइक जो है वो छत्ता बनाते हैं। इनका खुश्क सा चुड़मुड़ करने वाला आपने देखा होगा फौरी तौर पे
इनका उस तरह का छत्ता नहीं होता, मोमी छत्ता नहीं होता, चुड़-मुड़ के सख्त सा होता है, माशाल्लाह कारीगर है ये पूरा। हाँ अच्छा, आपने कहा ना कारीगर, बल्कि कहा ये जाता है कि ये जिस तरह लकड़ी की छाल उतार के उसको मुंह में चबा के उसका पल्प बनाते हैं ना, गूदा बनाते हैं, तो चाइनीज़ के ख्याल में सबसे पहले चाइनीज़ के तसव्वुर में जो आया था पेपर बनाने का आइडिया, वो भिड़ को देख के ही आया था। आज जो हमारे सामने पेपर है, इसका क्रेडिट जो है वो भिड़ों को भी जाता है। थैंक यू सर, बड़ा नॉलेज में इजाफा हुआ। अच्छा बच्चों, आपको सबसे दिलचस्प बात भिड़ों के बारे में बताऊं तो ये है कि भिड़ों की जो कम्युनिकेशन है ना आपस में जो राब्ता रखती हैं, ये एक खास स्मेल के जरिए रखते हैं। अच्छा ठीक है, खास स्मेल छोड़ते भी हैं, और फिर जब एक भेड़ मर जाती है ना, तो वो इतनी अजीब स्मेल होती है कि इर्द गिर्द काफ़ी दूर तक जितनी भी भेड़ें होती हैं उनको पता चल जाता है कि हमारा साथी या हमारी साथन जो है वो मारी गई है, और वो फिर फौरी तौर पे इकट्ठे हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि एक छत्ते में अगर 10 भेड़ें रहती होंगी, लेकिन जब उस 10 में से एक मर जाती है तो 250 भेड़ें वहां पे इकट्ठी हो जाती हैं। हाँ सर जी, वो इकट्ठी हो जाती है, ऐसे लगता है जैसे इनकी कमेटी खुलने वाली है। बल्कि ऐसे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन फोर्स आ गई है कि इसका मर्डर कैसे हुआ है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। अच्छा भाईजान, हमारे यहाँ देखा गया है कि कोई मसला दरपेश हो घर से बाहर किसी को भी, तो कोई काम ना हो रहा हो, कोई काम फंस गया हो, तो फौरी तौर पे पूरा मोहल्ला क्या पूरा शहर जो है वो मशवरे देने आ जाता है, इंज कर लो, नहीं 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 तो नहीं पता, इंज करो, इस तरह करो, अबे नहीं ऐसे नहीं यार, ऐसे कर। फौरी तौर पे हर बंदा जो है ना वो टेक्नीशियन भी बन जाता है, प्लम्बर भी बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, डॉक्टर भी बन जाता है, इन्हों पे आओ, इन्हों करो, मतलब मरीज की तबीयत। लेकिन काम का जो एंड रिजल्ट है वो ये होता है। क्या सर? ये देखें, दिखाएं सर जी। अब पत्थर पड़ा हुआ है यार, ये देखो, और पत्थर हटाने की बजाय, पत्थर नहीं क्योंकि मुकद्दस पत्थर है, क्या है इसको, वो देखो पाइप को 14 बेंड दे के उन्होंने पत्थर वहीं पर रहने दिए। मतलब महल्ले में जितने मशवरा देने वाले हैं, अगर रल के चुकते तो इन्हों भावें पैदल पिंडी छड़ डालते। सर इस पत्थर की वजह से है कि पत्थर अपनी जगह भारी है। और भाई प्लम्बर कोई मेरे वर्गा से, उनको पत्थर चुकिया नहीं गया, उन्होंने कहा उत्ते ही जोड़ पा दे। असल में प्लम्बर ने जोड़ों के पैसे चार्ज करने थे, उसने काम जो 1000 में करना तो उसने 5000 लिया होगा बाद में। ਇਹ ਗੋਡੇ ਸਾਗਟਾ ਪਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। हाँ 500 ਗੋਗਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੈਚਅਪ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਹੀ ਖਾ ਜਾਣਾ। तो 500 क्यों देते, गोगे से 500 लेते। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ अपना ज़हन ज़ाया करना, ਜਿਹਦੇ ਬੂਹੇ ਗਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ यार। अच्छा भाईजान, अगली एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तकरीबन नाकाबिले यकीन है। ये देखिए, बाइक पे हम लोग तो बस ये कहते हैं ना कि जी 14 बच्चे बिठा के खींच ले, वो छोड़े, ये देखें आप। ओह माय गॉड, जरा गौरी ध्यान करो, आटे वाली जुगत। ਲਓ ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ, ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਆਟਾ ਲੱਭਣ ਡਿਆ तो मोटरसाइकिल वाला ले जा रहे हैं। गोगा इस बाइक वाले को दिल में कह रहा है तू पूरा ट्रक खींच ले, मेनू बहा के चला फिर मना तेरे। ये नहीं कह रहा गोगा, गोगा ये कह रहा है कि तू ट्रक पूरा खींचते ले है, मेरे घर छड़ के आए तो फिर मना। अच्छा भाईजान, कराची के हालात वैसे सितम ज़रीफ़ी की इंतहा है कि क्राइम में भी लाफ्टर आ जाता है। इस किस्म के क्राइम हो रहे हैं, लेकिन ऐसे दिलचस्प वाक़यात होते हैं इंसान को यकीन नहीं आता। ये देखो, एक चोर है, वो गाड़ी का साइड मिरर उतार रहा है, वो देखना जरा। हाँ जी हाँ जी, तो बड़े तरीके से पहले उसने ये किया, ये देखो, ये उतारा है, रखा है, ठीक है, बाइक पे। वाह वाह वाह। अब वो दूसरा उतारने आ रहा है, अच्छा ये देखो, छुपाया भी है उसने। हाँ हाँ, ताकि पकड़ा। ये देखो, वो अब दीवार के साथ है, वो बड़े तरीके से आया, इधर उधर देखा है, बहुत अच्छे। वो देखो, अब दूसरी उतार। तू एक ही ला के भाजा, थोड़ी खा ला। नहीं नहीं, दूसरा थोड़ी खा ला तो सुथरी खा ला है, तो यार वो थोड़ी खाएगा फिर भी चोरी की खाएगा। वो देखो, वो दूसरा उतारा है उसने शीशा, और ये देखो डाकू आ गए। ओ लो, चोरों नु पै गए मोर। इसको कहते हैं चोरां नू पै गए मोर ते मोरां नू पै गए होर। और ये सही वीडियो है। ਜਿਹਦੇ ਨਸੀਬ ਚ ਹੋਏ ਲਿਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अल्लाह अकबर, देखो जरा तो भाई क्या बेहिसी है हाँ जी। और किस कदर क्राइम फैला हुआ है कि ऊपर तले हो रहे हैं, ऊपर तले हो रहे हैं। ਹੁੰਦੇ ਡਾਕੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਡਾਕੂ ਆ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ,
ਦੇਖੋ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਈ हाँ जी कोई छोटा मोटा फायर भी करना ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੱਸੀ ਖੋ ਕੇ ਪੀ ਲੈਣੀ लाफ्टर भी देना ਅੱਛਾ ਵੀ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਡਾਕੂ ਵੀ ਦੂਜੇ ਡਾਕੂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। अच्छा, बंदर और चिंपैंजी भी क्या कमाल तमाशा लगाते हैं कई दफा। ये देखें, लेकिन ये बेचारा रोजी कमा रहा है अपनी हक लाल की। यार ये तमाशा नहीं उसने लगाया हुआ, उसने जंगल में सर्विस स्टेशन खोला है मैं तो कह रहा हूं, और मेहनत कर रहे हैं दोनों भाई वो देखे ना, बेचारे। तुम्हें क्या पता है उनका वालिद नशा करने लग गया हुआ है। ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਨਾ ਕੇਲਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਟੌਫੀ। महंगाई इसका मतलब कि जंगलों में भी हो गई है। नहीं वालिद नशा करता है तो बेचारे की जवान सिस्टर भी आने वाली इन्होंने इसी तरह देखना, मेहनत मुहनत करके अपना घर सेट कर लेना है। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਧੁੰਦੇ ਨੇ? नहीं जी नहीं, गड्डियां तो काफी धो लेंदे ने गोगा जी। असल च बात यार ये तुम है परफेक्शन देखो, वैसे सीरियसली देखो, लगता नहीं है कि जानवर धो रहे हैं। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਲਾਣਾ ਹੀ ਆਂਦਾ, ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ मारना नहीं आता। यार सारा आता है, तुम जाओ तो सही एक दफा गाड़ी लेके। मैं तो आगे पहले जीजी को कहने वाला था, देखो जीजी तुम कहते हो कि गौरी मेहनत नहीं करता। अब भाईजान इन्होंने जिराफे के साथ मिलके बनाई हुई है ये सर्विस स्टेशन। ये साबन मार देने, जिराफा आके उत्तों ऊंचा पैप करके थले पानी मार प्रेशर ना लो गड्डी साहब। जी हाँ। ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਇਹ ਫਿਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾ ਸਕਦੇ। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल, और चलते चलते एक बुज़ुर्ग की अपने आखिरी लम्हों में की गई एक बहुत खूबसूरत बात। रास्ता गलत हो तो पलट जाना, हक बात हो तो डट जाना, सामने बीवी हो तो हट जाना। नाज़रीन खुश रहे, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।